Assalamu alaikum everybody. I hope you're all doing well. Let's just begin with our lecture today. So the topic for today is the fundamental economic problem scarcity. अच्छा, in last lecture we studied needs and wants. अब needs क्या होती है? Needs वो थी जो चीज हमारी living बनाती है. Things that we require that are very important, that are essential for us to survive. ठीक है? जो हमारा survival enable करती है. For example, food, house, clothing and shelter or safety. ठीक है? अच्छा, food was things we eat. Housing was a place to live or a roof on our head, and clothing anything to cover our bodies with, and safety to feel the safety to feel safe from the weather, harsh conditions, or from animals or anything that can be a potential danger. ठीक है? अच्छा, सो अब वांट्स क्या थी? वांट्स जहाँ जैसे ही हमारी नीड फुलफिल हो जाती है, जैसे ही हमारी बेसिक जरूरत फुलफिल हो जाती है, उसके बियॉन्ड एनीथिंग इज अ वांट, इज अ डिजायर. ठीक है? आई माई डिजायर इज टू गेट एन iPhone. Your desire is to have a PS5. Our desire is to live in a big house or to travel the world. Okay? Now, because of those desires, we have a big problem, that is scarcity. Now, what is scarcity? Scarcity is the fundamental economic problem that arises because there are not enough resources to produce all the goods and services that people want. It is the permanent gap between limited resources and the unlimited wants of humans. So, because अब हर एक की जो wants होती हैं, जो desire होता है ना, वो कभी भी आपका पूरा नहीं होगा. ठीक है? आपके पास रिसोर्सेज कम है और आपकी डिमांड ज्यादा है. एक बंदा अर्न कर रहा है 5 लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए. एक बंदा कमा रहा है, one person who is making 150,000, how will he be able to fulfill all of our desires? How is it even possible? ठीक है? यहाँ पे तो हमारे रिसोर्सेज ही लिमिटेड हो गए ना. Now, why do scarcity exist? Scarcity is a universal fact of life because the resources we use to produce things are finite. The resources are called the factors of production and they are all limited. Now, what is it that resources are limited? Our factors of production basically is limited. Land is limited. Okay, how is land limited? Land is limited because there's only a fixed amount of land on earth. Okay, majority of earth is water, right? Majority of earth is water, and there's a very limited area which is green, which is the land. Natural resources like oil, minerals, forests are being used up and take millions of years to form again. Again, the resources are limited, like oil is resource limited, minerals are limited, forests are being used. Like we had millions of forests, but now all of them, this that is being evacuated so that more people could live in. So like there's more space to live in for people. बट अगेन अब आपका तो लैंड जो है वो लिमिटेड हो गया ना. आप अगर फॉरेस्ट हटा रहे हो तो फिर आपकी जो लकड़ी है या फिर आपकी जो रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट से आ रहे हैं वो कैसे फुलफिल होंगे? या फिर आपके पास अगर ऑयल्स हैं और मिनरल्स हैं, अगर आप सारा लैंड ही वो कर दोगे, इवैक्यूएट कर दोगे, कि ऑयल जो है, जो आपका पेट्रोल है, वो लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना. नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी. ठीक है? अब जब वो खत्म हो जाएंगे तो वो लिमिटेड हो गया ना. Why is everybody, why are people shifting to electric cars? Why are we shifting to solar energy? Why? Because solar is unlimited. ठीक है? Then we have fresh water. Fresh water sources are also limited under threat. ठीक है? अब हमारे पास इशू क्या है कि we have a lot of water. ठीक है? Earth is more than 50 to 60% of Earth is water. But that water, that 60-70% of water is all oceans. ठीक है? सारे सी है. ठीक है? सारे समंदर है और सारा जो पानी है वो नमक वाला, कड़वा पानी, और वो साफ पानी नहीं है. तो अब जो फ्रेश वाटर है ना वो भी लिमिटेड है. और वो थ्रेट पे कैसे है? क्योंकि वो पानी अब खत्म हो गया. अब क्यों आपने देखा होगा रिसेंटली, अब ज्यादातर लोग, ज्यादातर बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो है वो सारी एकदम से बोरिंग पे स्विच हो गई. Then we have limited labor. Labor, how is labor limited? The number of people available to work in an economy is limited by the population size. The time, energy, and skill level for each worker is also limited.
So basically, if there is like a population of like 400 people or 500 people in a town in small, ठीक है, अब वो सारे 500 या सारे 400 लोग जो हैं वो सारे यंग तो नहीं है, वो सारे इस एज के तो नहीं है जो काम करते हैं, उसमें बड़े बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। अब आप बच्चों से तो लेबर नहीं करवाओगे और आप बुजुर्गों से भी नहीं करवाओगे, तो आपकी जो यूथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ना, तो उसमें भी वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड टाइम में भी वो पूरा 24 घंटे या फिर वो 20-25 साल कंटिन्यूअस काम तो नहीं कर सकते ना। दे नीड रेस्ट, दे नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स, और सबका जो स्किल लेवल है वो डिफरेंट है। आपका स्किल लेवल डिफरेंट है, मेरा स्किल लेवल डिफरेंट है, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, मेरी एनर्जी, ठीक है। तो अब ये वाली चीजें भी लिमिटेड हो गई ना। Then we have not everyone has specific skills required for every job, as I've already told you. For example, not everybody is capable of being a doctor or being capable of being a singer or capable of selling anything. ठीक है, हर कोई मार्केटिंग में अच्छा नहीं होता है और हर कोई क्रिएटिव जीनियस भी नहीं। कुछ लोग अच्छा है जो क्रिएट अच्छा कर देते हैं पर उनको सेल करना नहीं आता। कुछ लोगों को सेल करना आता है बट उनको बनाना नहीं आता, ठीक है। और कुछ लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी नहीं आती, वो हर कोई कम्युनिकेटिव नहीं होता। तो अब सब चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स चाहिए। अब सब आपके पास जो स्किल होते हैं मेरे पास तो नहीं है ना, यहाँ पे हमारे स्किल्स भी लिमिटेड। Then you have capital. Capital is also limited. Machines, factories, tools and infrastructure wear out over time. Depreciation. Depreciation basically क्या होता है? For example, एक टेबल, ठीक है, मैंने आज एक टेबल खरीदी। अब क्या 1 महीने बाद उस टेबल की जो ओरिजिनल प्राइस है मुझे उसी पे रहेगी? फॉर एग्जाम्पल की टेबल मुझे 1000 रुपए की पड़ेगी, ठीक है, कोई सी भी टेबल है। अब आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूजिंग दैट टेबल, क्या वो टेबल की वैल्यू 1000 ही रहेगी? नहीं। अब वो जो 1000 नहीं रहेगी, उसमें जो पैसे, फॉर एग्जाम्पल वो 800 की हो गई होगी, वो 900 की हो गई, वो 950 की हो गई। अब वो जो 50 का या 100 का या फिर 200 का डिफरेंस आया है ना, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है, अब भी डेप्रिसिएशन इसलिए इंकर होती है क्योंकि सबसे पहले जो टेबल की वैल्यू थी ना वो उसका रिटेन नहीं, बिकॉज एक नई प्रोडक्ट में और एक यूज चीज में फर्क होता है ना, वो वेयर आउट हो जाती है, वो यूज होती है, उसमें निशान होते हैं, उसके धब्बे होते हैं, या फिर हो सकता है वो खराब हो जाती है, वो टूट जाती है। तो अब एक नई चीज में पुरानी चीज में डिफरेंस तो यही होता है ना। तो मशीन्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, टूल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ये सब विद टाइम पुरानी होती जाती है, वेयर आउट होती जाती है। अब जैसे कि मशीन देखिए, मशीन में जंग आ सकता है, मशीन खराब हो सकती है, मशीन का इंजन खराब हो सकता है, फैक्ट्रीज की जो जगह है, जो लैंड है, वो बोर आउट हो सकता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में इश्यूज आ सकते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली जो आपके टूल्स हैं, अगर आप नॉर्मली कारपेंट्री के टूल्स देखें या इलेक्ट्रिशियन का टूल्स देखें, आप में की आधी से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं, जो जंग आती है, ठीक है। Infrastructure wear out कैसे हो जाता है? If someone who's living in Karachi, we all know how infrastructure is wearing out. We all are seeing. आपने सदियों पहले के रोड बनाए हैं and then you're seeing it like your infrastructure has been worn out. ठीक है? Building new capital requires significant investment and time. अब मैं नया कैपिटल स्टार्ट, मैं नई जगह लूँ, मैं उसके ऊपर नई फैक्ट्री लगाऊं, मैं फिर नई मशीनरी पुट इन करूँ, सब कुछ करूँ, टूल्स लाऊं, लेबर लाऊं, सब कुछ लाऊं, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा ना, मुझे मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जाएगी। तो बिल्डिंग अ न्यू कैपिटल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, एंड इट टेक्स years and years and years to rebuild a factory properly or make it functional like it was before. There's a limit on to how much capital exists in an economy at any single point in time. Also, in a certain economy, there's a very limited amount of capital that you can keep. ठीक है, मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल है उस पे इट्स नॉट कंप्लीटली योर्स, गवर्नमेंट विल हैव अ शेयर ऑन इट। और एक इकोनॉमी में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक करंट इकोनॉमी, इज एवरीबॉडी अ बिलियनियर? नो। कैन एवरीबॉडी बी अ बिलियनियर? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो पे गैप है ये रखा गया है, इसी वजह से रखा गया है। इट्स नॉट पॉसिबल एवरीबडी हैज मनी, एंड आल्सो नॉट एवरी अदर पर्सन, एवरी 10% इज नॉट अ बिलियनियर। बिलियनियर्स बहुत है, बिलियनियर बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, ठीक है। Then we have enterprise. Enterprises, the lab, the factories. Not every individual has the vision, risk-taking ability, and creativity and skills required to be a successful entrepreneur. अब हर एक शख्स के पास
ये स्किल या विजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिएटिव हो सकता है, समवन नोज हाउ टू सेल स्टफ, समवन नोज हाउ टू हायर स्टफ, सब कुछ है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, लाइक इन 5 में से कोई एक होंगे जिनको ये सारे स्किल्स आते होंगे, और एटलीस्ट दे नो कि अगर वो इस सारे लोगों को एक जगह कर लें हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो अब वो जो मैनेजिंग वाली चीज होती है वो भी बहुत कम लोगों को होती है, और जो ये सब कर ले उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जब आपके पास एक में से पांच में से एक बंदा ऐसा है, तो आप वो कर लेना, 5:1 का रेशो आपका चल रहा है, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है ना आपका दिमाग, और बहुत लोग भी बहुत लिमिटेड है। The willingness to take on financial risk is a scarce quality. And one for not everybody is able to take risk, not everybody is willing to take risk. पैसे बहुत सारे लोग के पास होंगे, लेकिन हर कोई ये पैसे लगाने में राजी नहीं होगा, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ लाइक 3 करोड़ रुपीज है, आप उनको एक रैंडम बिजनेस में लगाने से पहले बहुत दफा सोचिए। वाई? बिकॉज कि आपकी बिजनेस से पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, दैट्स अ ह्यूज रिस्क, ठीक है। द inescapable consequence of choice, because resources are scarce we cannot have everything we want, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली एज भी अगर देखा जाए तो आईफोन भी चाहिए, तो घर भी चाहिए, तो गाड़ी भी चाहिए, ठीक है। अब कोई एक चीज के लिए हम किसी दूसरी चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो चॉइस हमें करनी होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो चॉइस हमें लेनी होती है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव ऑल ऑफ इट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग के पास होता है, बट फॉर नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और लाइक टू हैव एवरीथिंग, लाइक आज ही मुझे आज ही नई गाड़ी चाहिए, आज ही मुझे बिल्कुल नया घर चाहिए, आज ही मुझे बिल्कुल लेटेस्ट फोन चाहिए, और आज ही मुझे ट्रैवल करना है, तो ऑल ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल। The fundamental problem scarcity forces every economic participant to make choices. जो scarcity की प्रॉब्लम है वो हर एक के लिए है, ठीक है। वो बहुत अमीर बंदे के लिए भी हो, किसी रईस के लिए भी हो, और किसी गरीब के लिए भी है। हर एक को कोई ना कोई चॉइस लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। Individuals must choose how to spend their limited income, example buying a new phone or saving for a holiday. Now it's up to you, आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल like you're saving up for money, and now like आपने कहा था कि मैं पैसे जमा करके फोन लूँ, ठीक है। लेकिन अब आपके स्कूल की कई जहाँ पे लाइक ऑल योर फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, और वो जो फोन के पैसे हैं और वो जो ट्रिप के पैसे हैं no almost equal. Now it's up to you whether you want to save up for the phone or do you want to go to that trip with your friends. Okay. Businesses must choose how to use their limited resources, investing in a new factory or spending the money on advertising campaign. Similarly, ये जो choices होती है ना ये business को related, एक business के पास like they made good profit this year. Now it's up to them whether to like they have 3 choices by the way. Whether to take that money home with themselves, like owners take that money home, और जो business चल रहा है वो वैसे चलेगा। Number one. Number two, to like start a marketing campaigns or like to go on large scale campaigns. Both. And number three, or to invest in a new factory, invest in a new business. ये 3 choices, ठीक है। अब at the same time ये तीनों नहीं हो सकते, अब कोई एक ही लेनी पड़ेगी, तो वो जो choices है ना वो हर एक को फेस करनी पड़ेगी। Government must choose how to spend limit tax revenue. Example, building a new house or a new school, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट एक लिमिट टैक्स रेवेन्यू करेगी, ठीक है। अब वैसे तो नीड इन अ सिटी इज फॉर स्कूल, फॉर हॉस्पिटल एंड न्यू रोड्स इन एवरीथिंग, और न्यू रेलवे और न्यू एयरलाइन, ठीक है। लेकिन अब now government has to make a choice whether they should open a school or whether they should open up a hospital, whether they should go for an airline or whether they should reconstruct the roads or whatever. Everybody, every single individual has to make choice because resources are scarce. Resources are limited. Wants are unlimited. Resources are limited. Every single one of these choices involves giving something up. Like to choose one thing, to make that decision, to make that compromise, you have to give one up to get others another, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के दोस्तों की ट्रिप आप ले लेते हैं, तो आपको अपना फोन वाली चीज फॉर द टाइम में डिले करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी मोमेंट पे यू आर चूजिंग वन ओवर द अदर, और इफ यू आर चूजिंग फोन over the trip, so it's like you're choosing you're willing to let go of your friends, a fun time, a good holiday with your friends over a, now the choice is yours, which one you want to make, ठीक है। The choice, the cost of choice, opportunity cost. Opportunity cost is the next best alternative that you give up when you make a decision. Opportunity cost is basically
मैंने ट्रिप ले ली और मैंने फोन पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब जो मैंने फोन पे कॉम्प्रोमाइज किया है ना, वो चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी की जो कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है, मुझे उस ट्रिप की जो कीमत चुकानी पड़ी है वो ये थी कि उसके चक्कर में मेरा फोन डिले हो गया। सही है। मुझे इंडिपेंडेंस कि हमें फ्रीडम के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए जो एक कीमत चुकानी पड़ी थी वो ये थी कि हमारे बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी, हमारी बहुत सारी चीजें वो पार्टीशन के पहले रह गई। सही है। या फिर अगर लाइक इफ आई लाइक आई वांट गुड grades and everything, then I'm compromising on fun adventures. If I'm like prioritizing fun adventures, then I'm skipping compromising on my studies. All of those compromise is called opportunity cost. ठीक है। It represents the benefit you could have received but give away in order to take your chosen option. ठीक है। अब वो जो है कि वो आपको बताता है कि आप कौन सा बेनिफिट ले सकते थे अगर आप अपना जो चूजन ऑप्शन है वो चूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फोन चूज किया होता तो हो सकता है मुझे PS5 को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो अब ये बता रहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेरा PS5 कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैं फोन मैंने नया ले लिया। अब इट कुड बी किया तो मेरा कि मैंने अपना फोन कॉम्प्रोमाइज करके मैंने PS5 ऑप्ट कर लिया। ठीक है। Why is opportunity cost important? Understanding opportunity cost helps individual businesses and governments make better, more informed decisions. ठीक है। अब कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे कि अब PS5 इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन अब आप बैठ के ना सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट लाइक किसका ज्यादा फायदा है। लाइक हैव गेम्स एंड लाइक वर्ल्ड क्लास गेम्स और बहुत अच्छे ग्राफिक्स और बहुत अच्छा कंसोल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, आई हैव अ गुड फोन, आई हैव अ गुड कैमरा, इट्स प्रेजेंटेबल, it's reliable, it will work large, it gives more services than a PS5। ठीक है। इसके बेनिफिट्स ये मेरी लाइफ में ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट्स मोर यूजफुल। अब आपको जब आप प्रोज एंड कॉन्स मेजर करते हो ना, वो इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करूँ, किस चीज के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ, कौन से ऐसे रिस्क हैं जो मैं लेने को तैयार हूँ, और कौन सी चीजें आई एम लाइक विलिंग टू लेट गो। if it forces decision makers to think about what they are really sacrificing when they choose one option over the other। अब जो decision making है, everybody is making decisions on their own over something or the other। ठीक है। किसी के लिए वो कुछ डिसीजन बहुत बड़ा होगा, वो आपके लिए छोटा होगा। आपका कोई डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा होगा, वो दूसरे बंदे के लिए बहुत छोटा होगा। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, और कोई एक चीज वो सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि उसको दूसरी चीज मिल जाए। अब जो सैक्रिफाइस चीज करी जा रही है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास है 2,000 रुपए। नाउ इट्स अप टू मी, आई एम लाइक कि मैं या तो इसका कुछ खा लूं या फिर मैं इनको सेव सेव कर लूं, और फिर मैं बाद में लाइक आई कैन गो आउट विद माय फ्रेंड्स ऑन अ गुड इन अ गुड स्पेस। ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट चली जाऊंगी या उनके साथ कुछ कर लूंगी, या फिर मैं अभी 2,000 रुपये खर्च करके कोई खाना मंगा लेती हूँ। और क्या बेटर ऑप्शन है। ठीक है। अब मैंने अगर देखा कि अकेले जाने में या कुछ करने में क्या फायदा, अभी भूख लग रही है, मैं इस चीज को ऑप्ट कर लूँ। या फिर मैंने ये देखा कि लाइक इफ नेक्स्ट वीक दे आर गोइंग और मैं ये पैसे अभी खर्च कर दूंगी, मेरे पास पता नहीं उस टाइम पैसे आए ना आए। तो ये जो चॉइसेस है ना, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग ये पता लगाना होता है। दैट इज हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्क्स। ये मैं अपने प्रोज और अपने कॉन्सिक्वेंसेस दोनों मेजर करती हूँ। It highlights that the true cost of anything is more than just the money spent. It's the value of experience or benefit that was lost। अब अगर जो मैंने आपको भी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली और अपने लिए खाना ऑर्डर करने वाली जो एग्जांपल थी, इधर वेज दे बोथ आर। ठीक है। अब 2,000 में फॉर इन इंडिविजुअल बहुत अच्छा खाना। Similarly, if you're going out with your friends, वहाँ पे भी like you might be going on in a good space या फिर अच्छी जगह जा रहे होंगे आप। ठीक है। That's why you're concerned कि अगर ये पैसा वहां खर्च होगा तो वहां पे पैसे देने को नहीं होंगे। तो अब आपको ये देखना है कि whether you want to enjoy a meal for now or whether you want to have an experience with your friends where like all your friends are getting together and they're like having fun, talking, gossiping, and enjoying themselves। सही है।
अब वो सब चली चली जाए क्योंकि आपने अभी पैसा खर्च कर दिया, या फिर आप अभी कुछ हल्का फुल्का खा लें, घर का खाना खा लें, और फिर आप उनके साथ एक वीक बाद चले जाएगा जहाँ पे लाइक आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरेबल, आपकी अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो जाए, आपको अपनी दोस्तों से कुछ अच्छा टाइम भी मिल जाए, ठीक है। Example है, detailed example of opportunity cost is a student choice scenario. You have 20 pounds and 2 hours of free time on a Saturday. You can either go to the cinema with friend or buy a new paper back book, and read it at home. अब आपके पास दो choices हैं, इधर इधर student के पास दो choices हैं, either they can go to a movie and they can have fun, जहाँ पे they are also paying like 15 for the ticket and 5 for the food, सही है। और यू हैव अ चॉइस दैट यू गो एंड बाय अ पेपर बैक मतलब हार्डवेयर की जो हार्ड कॉपी की बुक होती है, जिसका वो बुक है वो आप ₹10 की बाय कर लो, $10 की बाय कर लो, और फिर अल्टीमेटली आपके पास $10 फिर भी बचे। तो विच वन आर यू चूज? ठीक है, चॉइसेस यू चूज टू गो टू सिनेमा। और अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द एंजॉयमेंट, नॉलेज एंड रिलैक्सेशन वुड have received from reading the news. You could have learned something new, you could have enjoyed that time more, you could have learned a new skill or new tactic, or you could have avoided any like issues that occurred during that theater or like that meetup or something. वो आपकी opportunity cost is that you lost a long thing over like a long opportunity, a long list of knowledge over a book, over a movie, जैसे आपने बुक से ऊपर मूवी चूज कर ली। अब एक बिजनेस की चॉइस कैसे होती है? A business's choice scenario. A small software company has one skilled developer. They can either use her to create a new accounting app or to completely upgrade their existing company website. Choices made, they decide to develop the new app. अब इसमें अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या है? टू इम्प्रूव सेल्स, न्यू कस्टमर लीड्स एंड एनहांस कस्टमर satisfaction they would have gained from having a better, more functional website. There was this company, software company, and they had two options: either to make an accounting app or to completely revamp their website. They chose to go with the app. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? अब वेबसाइट ना बनाने से उनका क्या नुकसान बेसिकली हुआ? जिस भी चीज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कि उनकी जो बेटर सेल्स आ सकती थी, उनकी जो बेटर मार्केटिंग हो सकती थी, उनके जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो कस्टमर हैप्पी कस्टमर वाली चीज है, वो भी हो सकती है। अब होता है, अब ऐसा तो हम सबको पता कितनी दफा ऐसा हुआ, बिकॉज लाइक द वेबसाइट और had like was very glitchy और very like hard to like smooth UI UX नहीं था, तो हम लोगों ने like let it be, we're not buying, so we will just go and find something else। सही, हम सब ने किया ना। तो यहाँ उन्होंने अपनी एक कस्टमर बेस को छोड़ के उन्होंने एक ऐप जो हमको इन कंपनी बेनिफिट देगा, उन्होंने वो चूज किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट चॉइस क्या होती है? गवर्नमेंट चॉइसेस, a city government has a budget surplus of 50 million. It can either use it to build new state of art waste disposal plant or to completely renovate and upgrade all public libraries, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट के पास चॉइस है, उनके पास 50 मिलियन का सरप्लस इज बेसिकली प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट जो गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि वो इट्स यूज्ड फॉर लाइक पब्लिक फंडिंग, सो वी कॉल इट सरप्लस, वी डोंट कॉल इट प्रॉफिट। अब उनके पास क्या चॉइस है? इधर वो एक बहुत अच्छा डिस्पोजल प्लांट बना रहे हैं जहाँ पे सारी गार्बेज डिस्पोज हो रही है, या फिर वो जो जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं इन द सिटी, वो उसको अपग्रेड कर दे, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने चॉइस बनाई वो ये थी कि हम लोग डिस्पोजल प्लांट ले लेते, सही है। अब उससे क्या फायदा? अब उससे लाइक उन्होंने डिस्पोजल प्लांट तो ले लिया, उनका फायदा हो गया, लेकिन अब उनको लाइब्रेरी ना बनाने में नुकसान क्या हो? अब like 2 hours of free time or the time for study for an important exam or watch your favorite television show, वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन अब फायदा किस चीज का हुआ है? कि जो कम्युनिटी का बेनिफिट है, जो कम्युनिटी की लाइवलीनेस है, उसका फायदा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लाइब्रेरी से क्या नुकसान हुआ है? जो आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती थी वो नहीं हुई है। आपकी लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो जाती है, और सिटी के रेजिडेंट्स को भी उससे बहुत फायदा होता है। बट ऑब्वियसली अगर हम सब देखें तो गार्बेज डिस्पोजल प्लांट was the better option. Yeah. Then you have an individual's choice.
After work, you have 2 hours of free time. You can either use it to study or to watch your favorite television show. You chose to watch the television show. अब उसमें आपने क्या compromise किया? आपका दो options थे, to watch a show or to study. You choose to watch a show. अब आपने compromise क्या किया? आपने अपनी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज करी, आपने अपना ग्रेड कॉम्प्रोमाइज किया, आपने जो आप लिमिटेड टाइम पे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे, अब वो टाइम आपका वेस्ट हो, ठीक है. This was opportunity cost. Now you have building factors, building blocks. Those are factors of production. Basically, factors of production होता क्या है? Number one is land. Land is refers to all natural resources that comes from earth. It is not just the physical ground, but everything found on it or under it. So basically, land is not the zameen. Land is basically anything जहाँ से आपकी natural resources आती है. ठीक है. For example, आपके जो mining spaces हैं, या फिर आपके जो वेल्स हैं, या आपके जो बाग हैं, सब हैं, वो सारी चीजें जो है ना, वो उसको हम कहते हैं लैंड. इवन लाइक फैक्ट्री हो गई, या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, या कोई कंपनी हो गई, वो भी लैंड हो सकती है. सही है. तो इट्स जस्ट दैट्स नॉट लाइक जमीन, कोई खाली जमीन पर तो ये लैंड है, नहीं. लैंड कुड बी एनीथिंग. रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फिश इन द ओशन, वो आपको फिजिकल लैंड सेल्फ में आपके पास आ सकते हैं. वो फिश इन दी ओशन, आप उससे रॉ मटेरियल निकाल दो ना. और फिर आपके पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड थिंग्स दैट कैन बी रिन्यूड और यू कैन दोज आर अनलिमिटेड, वो जैसे टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट जो है, ये भी आपका लैंड ही है. Non-renewable sources like oil reserves, coal and minerals like iron ore output. सही है. अभी जो इस तरह से oil reserves हैं, coal mines हैं, मिन और आयरन माइंस है, गोल्ड माइंस है, ये सारे जो है, ये सब भी आपका लैंड है. वाटर रिसोर्सेज जिसमें लेक्स, सी और रिवर्स आते हैं, ये सब भी लैंड में ही आते हैं. ठीक है. देन यू हैव, अच्छा, उसके बाद आपके पास है लेबर. अब लेबर क्या होता है? The term labor refers to the physical and mental effort that people contribute to the production process. This includes a number of workers available on their skills and often referred as human capital. लेबर को हम एक और क्या नाम देते हैं, विच इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. अब जिसमें आपका एक इंडिविजुअल का फिजिकल और मेंटल एफर्ट सब लग रहा है, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए, फिर वो इजीली हो जाए. ठीक है. अब उसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? जिसमें वर्कर्स होते हैं, जिसमें उनकी स्किल्स लगती हैं, उन सबको हम कहते हैं लेबर और ह्यूमन कैपिटल. अच्छा, अब लेबर में क्या क्या आता है? मैनुअल लेबर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर, फैक्ट्री लाइन वर्कर्स. फिर आपके पास आते हैं स्किल्ड लेबर, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए. फिर आपके पास आते हैं प्रोफेशनल लेबर्स, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट, एंड देन लास्टली मैनेजरियल लेबर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स. ठीक है. ऑल ऑफ अस, एवरी सिंगल पर्सन हु इज वर्किंग इज लेबर. ठीक है. अब कोई डॉक्टर बन गया है, कोई लॉयर बन गया है, या फिर कोई टीचर है, या कोई अकाउंटेंट है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या कोई ड्राइवर है, या कोई कारपेंटर है. एवरी सिंगल पर्सन इज अ लेबर. बस उन्होंने लेबर को चार चीजों में क्लासिफाई कर दिया. जहाँ पे आपका मैनुअल लेबर है, जिसमें आपको अपने हाथ से अपनी मेहनत से काम करना है. जहाँ आपके पास स्किल्ड लेबर है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटिंग सीखी हुई है, एंड देन यू आर डूइंग. Then you have professional labor, जहाँ पे you studied about, you study to become a doctor, you study to become a lawyer, you study to be a teacher and an accountant. ठीक है. देन यू हैव मैनेजरियल लेबर्स. अब ये जो सारा लेबर की पार्टी है ना, इस सबको मैनेज भी तो कोई करता है ना. वो मैनेज कौन करता है? मैनेजर्स और डायरेक्टर्स. ठीक है. अब इन ये भी लेबर है, कोई ओनर नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाइक दे कुड जस्ट क्विट यू आउट. नो, दे कांट. सही है. बट अब ये लोग जो है, इनको मैनेजरियल लेबर कहते हैं, बिकॉज इनमें जो है वो मेंटल हेल्थ करते हैं. ठीक है. उनका फिजिकल लेबर नहीं लग रहा, बट लाइक दे आर पुटिंग इन टाइम एंड एफर्ट, दैट इज आल्सो लेबर. ठीक है. Real world examples may we have a teacher delivering a lesson in a classroom, a surgeon performing a complex operation in a hospital, a software developer writing code for new application, a pilot flying on a commercial airplane. ठीक है. अब ये जितनी सारी चीजें हो रही हैं, उसमें जो सब लोग हैं, जैसे टीचर जो है वो भी लेबर है, सर्जन है वो भी लेबर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी लेबर है, पायलट है वो भी लेबर है. ये जो सारे हैं ना, कौन सा लेबर हुआ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रोफेशनल लेबर. ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर प्रोफेशनल लेबर. ठीक है. अब इसमें रिवॉर्ड क्या है?
The reward for labor is called salary or wages. Now salaries और wages में भी एक difference होता है. Salaries is something that is paid after a month. ठीक है, मैंने एक महीना काम किया और फिर मुझे पैसे मिले. अब wages क्या होते हैं, मैंने एक दिन काम किया, मैंने एक घंटा काम किया, मुझे उसके पैसे मिले. ठीक है. Wages are often paid weekly for manual or physical work, while salary is an annual amount used paid monthly to professional staff. ठीक है. अब यूजुअली जो वेजेस होती है ना, वो आप स्किल्ड लेबर को देते हो या फिर आप बिल्कुल फिजिकल लेबर को देते हो. ठीक है, जैसे आपके पेंटर्स हैं या आपके कारपेंटर्स हैं, आप उनको महीने की तनख्वाह तो नहीं देते ना, वो आपके पास आते हैं, उन्होंने काम किया एंड देन लेते ही. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेजेस, दैट आर कॉल्ड वेजेस. ठीक है, लेकिन अब आपकी जो टीचर्स हैं या फिर आपके घर में कोई मेड काम करिए, आपके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको जो मंथ एंड पे जो पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सैलरी. ओके, देन यू हैव कैपिटल. Capital refers to the main man-made goods used to produce other goods and services. This does not mean money. Capital in business is not money. Accounting में capital money की sense में आता है, लेकिन in business it's not money. It's anything. It capital itself a physical item used in production. ठीक है, कोई मशीनरी हो या फिर आप जैसे कि अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप कैपिटल क्या लेकर आए हो, आप अवन लेकर आए हो, आप फ्रिज लेकर आए हो. ऑल ऑफ इट इज कैपिटल. सही है. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी और इक्विपमेंट हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जिसमें फैक्ट्रीज, हाउसेज, वेयर हाउसेज, ऑफिस, रोड्स, ये सब हो गए. ठीक है. अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, डिलीवरी ट्रक यूज्ड बाय लॉजिस्टिक कंपनी. जो ट्रक है वो कैपिटल है. कंप्यूटर सर्वर दैट होस्ट कंपनी वेबसाइट, ये जो है ये कैपिटल. द ओवन एंड मिक्सर इन अ बेकरी, दिस इज अ कैपिटल. द रोबोटिक आर्म्स ऑन अ कार असेंबली लाइन, दिस इज अ कैपिटल. ठीक है. The factor's reward. The reward for capital is called interest. Interest is the payment made for the use of money that was borrowed specifically to purchase capital goods. ठीक है. अब interest क्या होता है? For example, मैंने कुछ buy किया for 5,000. ठीक है. अब मैंने उसको अगर कहीं आगे बढ़ा, मैंने उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे लिए ना, that is called interest. या फिर for example, मैंने आपको लोन, ठीक है, मैंने आपको लोन दिया 1 लाख. अब मैंने आपको बोला कि जब मुझे पैसे वापस करोगे ना, तो 1,05,000 रुपए देना, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं. ठीक है, वो जो मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की ना एक्स्ट्रा 5,000 की, वो जो है वो इंटरेस्ट है. ठीक है. देन वी हैव एंटरप्राइज. ओके, नाउ व्हाट इज एन एंटरप्राइज? Enterprise is the driving force of the business. It is the ability to combine or organize the other three factors of production: land, labor, and capital to create business. जैसे हमने पढ़ा था ना, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ये सारे फैक्टर्स को साथ लेकर आता है, उनको मैनेज कर सकता है. कभी कभी एंटरप्रेन्योर के पास अपना खुद का कोई स्किल नहीं होता, बट ही इज वेरी गुड एट मैनेजिंग. He has not created anything itself, but he knows like contact to contact. He knows how to connect with people, how to bring all of them together, and then he's planning and managing everything. That's his skill. ठीक है, तो वो चीज होती है एंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल हु परफॉर्म दिस रोल इज ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर, द ऑल्सो अ बिजनेसमैन. ठीक है. Enterprise is a business, entrepreneur is a businessman, the one who's running the whole show. The role of the entrepreneur, innovation. The entrepreneur comes up with new product, service, or more efficient process. ठीक है. अब एक चीज है, किसी ने कुछ क्रिएट किया, अब उस क्रिएशन को मार्केट कैसे करना है वो एंटरप्रेन्योर बताता है. वो अपनी इनोवेशन यूज करता है, वो अपनी टेक्निक यूज करता है, वो अपनी सर्विस यूज करता है. ठीक है. फिर है रिस्क टेकिंग. द रिस्क देयर ओन मनी, टाइम एंड पर्सनल रेपुटेशन. अब उसने अगर 4 लोगों को जमा किया, ही इज पेइंग फॉर दैट. He would be paying to the creator. He will be paying to the chef. He will be paying to everyone. If, for example, if he has found a good recipe or a good chef, ठीक है, अब उसको रेस्टोरेंट खोलना है. अब वो सिर्फ शेफ से तो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता ना. Like he has to pay for the land, he has to pay for the labor, he has to pay for everything, and on top of that he has to manage everything. जो शेफ है उसका काम किचन तक ही महदूद है. ठीक है, किचन की हद तक ही है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर का जो काम है ना, वो लाइक वो हर जगह से, उसको बिजली इलेक्ट्रिशियन से भी उसी ने बात करनी है, तो उसने रेंट से, प्रॉपर्टी वाले से भी उसी ने ही डील करना है, तो वेंडर से भी उसी ने डील करना. सब कुछ इज ऑन द एंटरप्रेन्योर. ठीक है. देन यू हैव ऑर्गेनाइजिंग. They must effectively coordinate and manage land, labor, and capital.
Again, if they have all three of them, they must know how to manage them. कोई एक चीज भी, कोई एक फैक्टर भी उनको मिसमैनेज हो गया तो उनका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो सकता है. The example of an entrepreneur in the section, the entrepreneur has an idea, a new food delivery app. ठीक है, अब ये आइडिया किस पास है? Entrepreneur के पास. They raise money from investors or the bank. अब now they have got an idea. Now they're like, how do I collect the money? ठीक है, how do I get money from these people? They rent a small office space. ठीक है, जो उन्होंने लैंड ले लिया. They hire programmers to build the app and to make delivery. ये भी लेबर में आ गई. ठीक है, आपका जो they raise money from investors, वो आपका कैपिटल हो गया. They rent a small office or space, और ये आपका लैंड हो गया. And then they hire programmers to build up app and drivers to make deliveries. वो जो है वो आपका लेबर हो गया. ठीक है, अब इसमें रिवॉर्ड क्या है? जो एंटरप्रेन्योर जो अर्न करता है वो प्रॉफिट करता है. प्रॉफिट क्या होता है? जो एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुली टेकिंग द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. प्रॉफिट जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी बिडिंग प्राइस होती है. फॉर एग्जांपल, यू ट्रस्टेड द प्रोसेस एंड नाउ यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट इन रिटर्न. इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. फिर हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन. अब स्पेशलाइजेशन क्या है? Specialization occurs when individuals, businesses, and regions, or even the entire country, focuses their efforts on producing a limited range of goods or services, or on performing a specific task. Specialization basically होती है कोई एक individual जो है वो एक चीज का एक स्किल में माहिर होता है. ठीक है, उसने एक स्किल जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से सीख किया होता है that he can do it with his eyes closed. For example, अगर कोई बेकर है, ठीक है, उसकी स्पेशलाइजेशन बेकिंग में है. ठीक है, अब ही कैन बेक एट एनी पॉइंट एनी टाइम. ही कैन मेक गुड स्टफ इवन इफ ही इज एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली कुछ टीचर्स होते हैं, लाइक हर टीचर हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता ना. अब ऐसा बहुत रेयर होता है ना जो टीचर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो वो आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो. नहीं, हर टीचर की अपनी स्पेशलाइजेशन है. हर टीचर, हर कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, हर कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता, सबका सेपरेट है. अब सेम बंदा बायोलॉजी और अकाउंट नहीं पढ़ाता, अकाउंटिंग कोई और पढ़ाता, बायोलॉजी कोई और पढ़ाता. ठीक है, तो उसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं. The core idea is that by focusing on one thing, they can become very good at it, leading it to greater efficiency. अब ऐसा नहीं कि जो बायोलॉजी पढ़ाता है वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा सकता, नहीं. लेकिन अब ये बेहतर नहीं कि वो बायोलॉजी में अपना स्किल सेट इतना जीनियस कर ले that he doesn't need to work on accounting. अगर वो अकाउंटिंग में पढ़ाएगा, वो बायोलॉजी पे फोकस करेगा, तो there is a big chance कि he might lose both the books. ठीक है, अब लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल, व्हिच इज डिवीजन ऑफ लेबर. A heart surgeon specializes in performing heart surgery. They do not also try to be general practitioner or a plumber. ठीक है, डॉक्टर जो है वो कभी भी कारपेंटर नहीं बनेगा. या फिर इवन इन डॉक्टर इन मेडिकल साइंस, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हार्ट सर्जन है, वो ब्रेन सर्जरी नहीं करता. ठीक है, देन अ टीचर specializes in teaching one or two specific subjects. अब हर टीचर हर चीज नहीं पढ़ा सकती. जो आपके बड़े टीचर्स हैं या फिर आपके बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्या होता है? फोकस एक पे होता है, राइट. फिर आपके पास आता है बिजनेस लेवल. Intel specializes in making computer processes. They do not also try to manufacture cars or grow food. सही है. अब एप्पल जो है, एप्पल का काम इज ऑन टेक, राइट. वो बैठ के आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोलती. ठीक है, सिमिलरली अब आपका जैसे आईटेल उन्होंने बोला, अब आईटेल जो है वो अगेन टेक पे फोकस कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर कार्स और ग्रो. सही है. अब इम्तियाज जो है, इम्तियाज इज सुपरमार्केट जहाँ पे आपको जनरल ग्रोसरीज वगैरह मिलती है. आप मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, बट इट इज अ शॉपिंग स्पेस. बट दे आर नॉट ट्राइंग टू बी अ शादी हॉल, राइट. अब वो उस पर तो नहीं फोकस कर रहे हैं ना. अब जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, दे आर नॉट ट्राइंग टू टीच पीपल बायोलॉजी. ठीक है, Nike specializes in designing marketing athletic footwear and apparel. ठीक है, अब Nike की specialization क्या है? वो athletic footwear, वो sports wear. They're not trying to make wedding dresses now, are they? ठीक है, then you have regional and national level. अब regional और national level क्या होता है? The country of Saudi Arabia specializes in extraction and export of oil. The country of Brazil specializes in the production of coffee. A region like Silicon Valley specializes in technology and innovation. ठीक है, अब ये different countries है, different specialization. Saudi Arab is known for its oil. Middle East is known for its oil. They're not trying to export raw material. ठीक है, आपने बहुत कम, ये बहुत रेयरली सुना होगा कि सऊदी अरब से हमें आम आ रहे हैं, सऊदी अरब से हमें ये है. हाँ, खजूर आती है. ठीक है,
फिर जो ब्राजील इज नोन फॉर इट्स कॉफी, अब वो ब्राजील से भी आपको कॉफी का पता है, अब आपको और चीज का नहीं पता। अब मोरक्कन जो है आपको हर्बल टीज का पता होगा वहाँ का, और टी हो गई या फिर जो हर्ब्स होते हैं आपको उनको पता होगा, ठीक है। यू डोंट नो मच अबाउट के वो वहाँ बैठे वो मेटल थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिविजन ऑफ लेबर। Division of labor is a specific form of specialization that happens within a single business or a factory. Division of labor क्या होता है? एक फैक्ट्री है, एक शू मेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि उस फैक्ट्री में, शू मेकिंग फैक्ट्री में सबका अपना अपना काम है, ठीक है। एक बंदा है जो स्ट्रैप ऑन लगा रहा है, एक बंदा है जो लेदर को वॉश कर रहा होगा, एक बंदा है जो लेदर स्टिच कर रहा है। अब लेदर स्टिच करने वाले का सिर्फ काम है वो सिर्फ सारे जूतों की लेदर स्टिच करे, एक है जो सिर्फ स्ट्रैप लगाएगा, एक है जो सिर्फ बॉक्सेस में पैक करेगा। दैट इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। It means breaking down entire production process of goods or service into a series of much smaller and separate distinct tasks. Each worker or group of workers assigned to specialize in performing just one of these specific tasks related to. अब इसी तरह से लेट्स गो फॉर लाइक शू मेकिंग फैक्ट्री। अगर कहीं पे 2000 शूज एक दिन में बन रहे हैं, तो एक जो लेदर जो स्ट्रैप ऑन लगाएगा ना वो एक ही बंदा लगाएगा या दो बंदे लगाएगा। जो बंदा लेदर स्टिच कर रहा है वो बंदा स्ट्रैप ऑन नहीं लगाएगा, ओके। Then you have a car manufacturing assembly line. Instead of one skilled craftsperson or building an entire car from start to finish, the process is divided into many small tasks. ठीक है, एक गाड़ी बनाने में सिर्फ एक बंदा नहीं बताता, there are like multiple people involved, ठीक है। Worker A welds the car into chassis together, एक welder है, दूसरा है installs the engines into chassis, अब जो दूसरा बंदा है वो इंजन इंस्टॉल कर रहा है, तीसरा जो है वो डोर्स लगा रहा है, चौथा जो है वो विंड स्क्रीन और विंडोज पे काम कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ पर्सन जो है वो पेंट कर रहा है, और सिक्स पर्सन जो है वो सीटिंग और ये सारी चीजें फिटिंग कर रहा है, ठीक है। अब now there's advantages and disadvantages of division of labor as well. Okay, now what are the advantages? अच्छा, अब डिविजन ऑफ लेबर बेसिकली क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है? फॉर द बिजनेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अब अगर एक शख्स जो रोज एक ही काम कर रहा है तो ऑब्वियसली दे कैन डू दैट सेम वर्क विद देयर आईज क्लोज्ड, दे डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, दे नो हाउ टू डू दैट वर्क, राइट? Then you have workers become much faster at performing their single task, repetitive task due to practice and repetition, known as the learning curve effect. This means a higher quantity of output can be produced in the same amount of time. Now you have like 5 workers for 5 different parts. You can make 100 different products at one time. सही है, लेकिन अगर एक बंदा ही एक ही काम कर रहा हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर दूसरी चीज ये कि आपकी एफिशिएंसी भी मैटर करती है। एंड थर्ड, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपका जो लर्न जिसको हम लर्निंग कर्व कहते हैं उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब लर्निंग कर्व इफेक्ट होता है लाइक व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग रिपीटेडली एट द सेम टाइम। नाउ यू हैव लोअर कॉस्ट यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन। दूसरी चीज ये है कि लाइक instead of like I'm paying 5 different people lower than if I pay for the one person, for example, मैं एक शू मेकर हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री शू मेकिंग की है, ठीक है, मैंने 5 लोग रहे जिसमें 5 लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं। मैं उनको छोटे छोटे कामों को लाइक आई कैन गिव लाइक 20 रुपीज पर यूनिट, ऐसे लाइक फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट के आप 20 रुपीज मिलेगी। तो अब वो 5 लोग 20 रुपीज सबका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो अगर एक बंदा करेगा ना, अब उसको मुझे 200 रुपीज पर यूनिट देने पड़ेंगे, ठीक है। अब 5 लोग को मैं 20 दे दूं, उससे 100 रुपीज पर यूनिट, और कहाँ पे अगर एक बंदा वही काम करेगा तो 200 डबल हो गया ना। तो अपने ऑब्वियसली कॉस्ट भी बच गई। देन लाइक बेटर एंड मोर इफेक्टिव यूज ऑफ मशीनरी। प्रोडक्शन कैन बी ऑटोमेटेड फॉर स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क। अ मशीन कैन बी डिजाइन टू बिल्ड टू डू one job very well, very fast and with perfect consistency, ठीक है।
अब जो मेरी जॉब है और द थिंग दैट आई एम डूइंग, अब उसमें एक रेपिटेशन आ गई है, एक कंसिस्टेंसी आ गई, तो अब जाहिर सी बात है एफिशिएंसी और मशीनरी का यूज भी इफेक्टिव है। अब मैं एक हूँ जो रोज एक काम करी, मुझे पता है मशीन कैसे चलेगी, बट हर कोई वो मशीन चलाने एक नया बंदा आया तो देयर इज द चांस कि आपकी मशीन खराब हो सकती है। ठीक है। Also, it is much quicker, easier, and cheaper to train someone to perform one simple task than train them to build an entire complex product from scratch. ठीक है। Obviously, training और उसमें भी आपका जो time है, जो energy है, वो बच जाती है। सही है। To tell someone like you have to just put on a tape in this particular area on a particular paper on a particular file is much easier than telling them that they have to compile the whole book together. Okay. So again, आपकी training में जो time है, effort है, वो बच जाता है। अब वर्कर्स के लिए क्या फायदा है? वर्कर्स के लिए फायदा है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कि आपको लाइक यू डोंट नीड एक स्पेशलाइजेशन फॉर द जॉब। सही है। कोई छोटा काम है, यू कैन इजीली लर्न इट विद इन अ फ्यू डेज एंड यू आर गुड टू गो। टू पुट अ स्ट्रैप ऑन अ शू इज मच बेटर देन टू मेक अ होल शू, राइट? तो अब यहाँ पे जॉब एक्सेसिबिलिटी भी हो गई कि इजीली जॉब मिल भी जाएगी, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। ठीक है। देन यू हैव इंक्रीज स्पीड एंड स्किल। A worker can become an expert in their specific narrow task, which can lead to a sense of mastery and job security in that specific role. अब मैं एक काम एक हफ्ते तक रोज करूँ ना, आई कैन लर्न इट वेरी वेल, लेकिन सिर्फ एक काम। लेकिन अगर मैं 10 काम एक हफ्ते में लर्न करूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे उसमें साल भी लग सकता है। ठीक है। तो अब स्पीड और स्किल आपका बढ़ जाता है। Potential for higher pay. If a worker is paid based on output piece rate pay, their increased speed from specialization can directly lead into higher earnings. जैसे अभी मैंने शू मेकर वाली आपको एग्जांपल दी थी, अगर पर पीस 20 रुपीज पर बंदे को पर पर्सन जा रही है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि लाइक 100 पीसेज अगर वो करेगा तो उसकी 20 into 100 is 2000। ठीक है। अब इसी तरह उसने 200 किया तो 4000, इसी तरह से प्राइस बढ़ती जाएगी ना, तो अब एफिशिएंसी भी हो जाएगी, और लाइक देर देर अब इससे बिजनेस का भी फायदा है कि लाइक उसको एक दिन में दे आर गेटिंग मोर यूनिट्स, और इसमें वर्कर्स का भी फायदा है, दे आर गेटिंग पेड हायर। सही है। अब इसमें एडवांटेजेस थे तो अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब बिजनेस में क्या है, जो वर्कर बोर्डम और डिमोटिवेशन है। अब एक बंदा रोज सेम काम करके ना बोर हो जाता है। अब वो जो कभी कभी क्या लगता है कि अब वो उसके लिए बोरिंग हो जाता है, वो फिर उस इंटरेस्ट से, उस मोटिवेशन से नहीं करता, जिस विच कैन लीड टू अब वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड द प्रोडक्ट। ठीक है। अब वो आपका ध्यान नहीं है तो आपने गलत जगह लगा दी, आपने गलत स्टिचिंग कर दी, आपने गलत धागा किया, आपको ध्यान नहीं था बिकॉज यू आर बोर्ड। ठीक है। द बोर्डम कैन लीड टू लोअर मोटिवेशन, जिसमें आपको केयरलेसनेस में आपको होता है ना, बढ़ जाती है। अब आपके जब मोटिवेशन नहीं है तो यू आर केयरलेस, यू जस्ट वांट टू गेट डन विद इट, नॉट बिकॉज यू वांट टू। अब जब वो गेट डन विद वाला एटीट्यूड होता है ना, यू ऑफन लूज मेक मिस्टेक्स विच कैन इन टर्न कॉस्ट बिग लॉसेस समटाइम्स, जो कि आपका एक बड़ा नुकसान हो जाता है। Then you have lack of flexibility in the workforce. If a worker is only trained to do one specific job, they cannot easily cover for an absent or sick colleague. This makes the entire production process vulnerable to any single worker's absence. ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इतना रेस्टोरेंट, अब हर बंदे का अपना अपना काम है। ठीक है। एक बंदा है जो डो बनाएगा, एक बंदा है जो वेजिटेबल्स कट करेगा, एक बंदा है जो बेकिंग का ध्यान रखेगा, एक बंदा है जो क्लीनिंग करेगा। फॉर सम रीजन जो बंदा डो बनाता है वही नहीं है। ठीक है। अब और किसी को डो बनाना आता नहीं है, तो अब आप पिज्जा सेल कैसे करोगे जब आपके पास डो ही नहीं है? सही है। या फिर जो डो कर रहा है, जो सॉस में है, वो सही। अब जो दूसरा बंदा ट्राई करेगा तो वो कोई टेस्ट नहीं हो सकता वो कोई मिस्टेक कर दे, बिकॉज ही हैजंट डन इट बिफोर, ही हैजंट बीन डूइंग दिस लाइक सिंस फॉर लाइक years, right? इसकी वजह से आपके आते क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। If a worker is bored, demotivated, they might become careless, leading to more errors and defect in their specific task. ये मैं already explain properly कर चुकी हूँ। A fault early in the production line. Example, a poor weld can go unnoticed and ruin the final product, wasting all the work done afterwards. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का ध्यान नहीं है और उसने रो कर दिया। अब हो सकता है कोई बाल चला गया, फिर कोई इंसेक्ट चला गया, उसने ध्यान नहीं दिया। अब इट कैन रूइन एवरीथिंग, राइट? आपकी पूरी एक रेस्टोरेंट की आपकी पूरी इमेज खराब हो सकती है ना। Then you have high dependency. The business becomes highly dependent on each individual worker showing up and doing their job correctly. It also becomes depending on other businesses for specific components. For example, a car maker depending on a single supplier for tires. सही है।
अब एक फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं सिर्फ एक कंपनी से आटा लेती हूँ। फर्स्ट अब मैं उन्हीं पे पूरी तरह डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। अब वहां से अगर मुझे आटा आना बंद हो गया तो इसका मतलब है कि मेरा खाना नहीं बनेगा, मेरे रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। तो ये डिपेंडेंसी जो होती है ना, ये भी बहुत फिर इट्स वेरी डेंजरस। देन फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए क्या होता है, वर्कर्स कैन बी रेपिटेटिव एंड work can be repetitive and monotonous. The job can become dull, leading to lack of job satisfaction and a feeling of alienation. ठीक है, अब आपकी जॉब जब डल हो गई, you're not interested, like you just want to get rid of that job, you don't want to do that work anymore, you just want to get, you don't like the feeling, you feel very extremely demotivated and you feel very depressed and you feel like you have no use to, there's no आपकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं। ठीक है, देन यू हैव लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, द वर्कर्स ओनली डेवलप अ वेरी नैरो सेट ऑफ स्किल्स। अब इसमें क्या होता है, जब एक बंदा सालों सिर्फ एक ही काम करे ना, उसको सिर्फ वो एक ही काम आता है, उसको फिर कुछ और नहीं आता, जिसकी वजह से एक लाइक दे कैन नॉट इजीली adapt to new surroundings, they cannot easily learn new skills to survive. ठीक है, if they made redundant lose their if they are made redundant, they may find difficult to find another job because they lack broader range of transferable skills. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, reduced sense of achievement, workers may feel like just a small replaceable cog in a huge machine. They lose the sense of pride, purpose, and satisfaction that comes from creating a finished product from start to finish. अब इसमें क्या होता है, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे फर्स्ट फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स हुआ होगा ना, लाइक आई मेड अ परफेक्ट डो, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम्स आई एम लाइक अब डो ही तो है, रोज ही तो करती हूँ, क्या फायदा। तो अब आप व्हेन यू लूज द प्राइड और लाइक व्हेन यू थिंक दैट आपके काम में कोई पर्पस नहीं है, आपका इस दुनिया में कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, सो आपकी जो सेटिस्फैक्शन आती है ना वो नहीं आएगी, देन यू विल अल्टीमेटली वेरी डिमोटिवेटेड। ठीक है, that was for today, and then from next class we'll start some the added value. Thank you for that.